Yes, sir. Hello everyone. So today we'll learn about the numerical part of the trigonometry. But before that, we will talk about the previous formulas. So tell me, what is the formula for sine A plus B? Sine Sin A A plus cos B? B Sin A plus cos B cos A sin plus B. cos A sin B. Sine A cos B plus cos A sine B. And you know how to find out for the minus, so I will not write down for the minus. What is the formula for cos A plus B? Cos A plus B? It is cos A Cos A cos B minus sin A sin B. sin A sin B. Okay. What is the formula for tan A plus B? Tan A plus tan Tan B A plus tan divided B by upon 1 1 minus tan A tan B. Exactly. Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Next, sin this. Tell me. Yes. 2 sin box plus 2 cos box. sin box by 2 into cos that box by 2. So whatever you fill there in the box, that you have to divide by 2, you have to take here. What is the formula for cos that box? The cos square that box by 2, yes, minus sin square that box by 2. Okay, this is the first. Listen, there's another formula for this, that is 2 tan box by 2, yes, upon 1 plus tan square that box by 2. We derive that this formula also. After that, this is also equal to 2 cos square this box by 2 minus 1. This is also equal to 1 minus 2 sin square this box by 2. Sorry, this is also equal to 1 minus tan square this box by 2 upon 1 plus tan square this box by 2. Okay, what is the formula for tan box? 2 tan this box by 2 upon 1 minus tan square this box by 2. Got this? Next, what is the formula for sin 3 theta? Sin 3 theta or sin 3 x? So 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Okay, what is the formula for cos 3 theta? जल्दी बताइए. 4 cos cube theta minus 3 cos theta, just उल्टा हो जाएगा. What is the formula for tan 3 theta? 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus tan square 1 minus 3 tan square theta, 1 minus 3 tan square theta. Okay, so this is the one set of the formula. अब इसमें जो ये बॉक्स वाला है ना, ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मैं आपको बार बार हमेशा आपको याद दिलाते रहूंगा इस बॉक्स का कंसेप्ट. सो डोंट वरी, मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कैसे करना है. व्हाट वाज द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, क्या था बताइए. अब आप लोगों से मैं पूछने वाला हूं इसका फॉर्मूला क्या होगा. साइन ए प्लस साइन बी. ट्रिक के थ्रू बताइए, कौन बताएगा ट्रिक के थ्रू? कोई एक्सप्लेन करो ना, गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा ना. एडिशन है, क्या आएगा? एडिशन है, क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन. मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 आएगा. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 आएगा. अच्छा, प्लस है तो सेम आता है ना, मतलब साइन है तो साइन ही आएगा. और मल्टीप्लिकेशन का एंगल कितना होता है? a प्लस b बाई 2. साइन में क्या होता है? डिफरेंट होता है ना. तो इधर साइन आया तो दूसरा क्या होगा? कॉस a माइनस b बाई 2. अंडरस्टूड? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन a माइनस साइन b? आप लोग बताइए. अब देखो, माइनस है तो पक्का यहाँ मल्टीप्लाई आएगा. मल्टीप्लाई मतलब 2 रहेगा. ठीक है, अब माइनस की वजह से क्या होगा? साइन है तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, कॉस होगा. तो कॉस कितना आएगा? a प्लस प्लस b बाई 2. लेकिन हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? साइन को. देखो, ये माइनस साइन डिफाइन करता है, यहाँ क्या आएगा? अपोजिट आएगा.
और इधर का जो दूसरा वाला ना वो कौन डिसाइड करता है किस ये कौन क्या है, तो बताओ इधर क्या आएगा, साइन साइन में अपोजिट आता ना, ए तो अपोजिट आ गया, तो कॉस आ गया, तो a माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब बताइए कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा, प्लस है, बताओ ना, आप लोग बताओ, इसमें तो आप लोगों को हेल्प करना चाहिए, मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन स्पीक हियर। यस, थॉमस, थॉमस आर यू देयर, थॉमस, हेलो, हेलो, ओके, जयेश, जयेश आर यू देयर, Yes, sir. टेल मी द फॉर्मूला फॉर दिस, क्या होगा, plus there is plus, what I will write on here, just we don't have that much time, so if you don't know just tell me, sir I don't know, okay, but don't take that much time to reply, okay. Kunal, Kunal, tell me what I will write on here. Sir, 2 multiplication 2 times Okay, 2 times sine साइन कैसे आएगा, प्लस में सेम रहता है ना बच्चा, प्लस है तो कॉस, कॉस में कॉस ही रहेगा ना, हाँ प्लस में सर चेंज नहीं करता, तो कॉस कितना होगा, a प्लस बी बाय a plus टू। b by 2 अच्छा अगला क्या लेंगे, अगला साइन लेंगे या Into- कॉस लेंगे, वो कौन कैसे पता चला, हाँ इनटू cos cos, क्योंकि cos में सेम रहता है। Listen, this will define what will come here and this will define what will come there. Okay, तो ये प्लस है तो सेम रहेगा, cos आ जाएगा, और ये cos है ना, तो cos को जब डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताओ, sir सेम cos रहता है, हाँ सर cos, हाँ a minus b by 2 a minus b by 2. Okay, what is the formula for sin a, not sin a, sorry, cos a minus cos b, cos a minus cos b, Kunal, sir it will be 2 times 2 times sine sin a plus b by 2 by 2 and a minus b by 2 cos a into minus b again by 2 into cos और sin, into cos Cos. आएगा sin आएगा, कैसे cos आएगा, cos में तो सेम रहता ना, तो इधर यदि मैं sin लिया तो अगला वाला भी sin ही आना चाहिए, sin a minus b by 2, yes sir अंडरस्टूड। बट जब भी आपको दो साइन का प्रोडक्ट होगा ना, तो एक साइड में कहीं ना कहीं माइनस आपको लगाना पड़ेगा, इधर यू कैन टेक हियर माइनस और इधर यू कैन टेक दैट साइड माइनस, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द दिस, like the sin a plus b sin a minus b. Now the next, okay, Ria, are you there, Yes, sir. tell me formula for 2 sin a cos b, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड क्या आएगा, Addition या subtraction. एडिशन सर, तो एडिशन आएगा, यहाँ सब्सट्रैक्शन आएगा, देखो अपोजिट है, अपोजिट किस में होता है, अपोजिट किस में होता है, Negative. प्रोडक्ट अपोजिट है ना, Minus. प्रोडक्ट अपोजिट नहीं, प्रोडक्ट अपोजिट है, प्रोडक्ट अपोजिट है, इनका मतलब किस में होता है, प्रोडक्ट अपोजिट, प्रोडक्ट अपोजिट साइन में होता है, देखो ना साइन में प्रोडक्ट अपोजिट है ना, द Yes, प्रोडक्ट sir. इज अपोजिट इन साइन, और स्टार्ट भी किससे हो रहा है, स्टार्ट Sin. किससे हो रहा है, साइन से, सो देयर विल बी द प्लस, और इधर कितना आएगा बताओ, साइन, Sin. बताइए A यहाँ पे plus B. a प्लस बी, और इधर कितना आएगा, साइन A minus B. a माइनस बी, याद रखना इधर दोनों में सेम ही होता है, कुछ भी रहे यहाँ पे सेम ही आएगा, क्यों, एडिशन ऑफ द सेम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो विद डिफरेंट एंगल, यहाँ बताओ कितना होगा, 2 cos a sin b, अब यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है या डिफरेंट है, Different. डिफरेंट है, डिफरेंट और डिफरेंट है तो कौन चीज आएगा, साइन आएगा या कॉस आएगा, राइट साइड में Sin. साइन आएगा, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, Cos. तो बीच में क्या आएगा, Minus. माइनस, सो दैट्स व्हाई द साइन a प्लस b माइनस साइन, Sin A minus B. okay, 2 times of cos a cos b, 2 times of cos a cos b, जल्दी बताइए, अभी फिर से देखो सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट मतलब क्या आएगा, cos आएगा, cos और आएगा स्टार्ट भी किससे हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, cos से, मतलब cos Cos. a प्लस b, अब प्लस Minus. नहीं, माइनस कैसे होगा, Sorry. cos से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, cos प्लस आएगा ना, जब सेम से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो
यहाँ भी साइन आ रहा है और साइन से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे देखो साइन से आ रहा है लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉस से, इसके वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे क्या है, क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, और स्टार्ट भी किससे है, कॉस से, दैट्स वाई प्लस आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टू साइन ए, साइन भी सेम प्रोडक्ट है डिफरेंट है, प्रोडक्ट सेम है डिफरेंट है, सेम मतलब क्या आएगा, सेम प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम नेगेटिव प्रोडक्ट नहीं सेम प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, वो तो बताओ, कॉस आएगा ना। सेम प्रोडक्ट क्या है, क्या कॉस आता ना, कॉस डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए साइन और सेम प्रोडक्ट के लिए कॉस, सेम प्रोडक्ट है कॉस आएगा। अच्छा इधर तुम कॉस लिख रहे हो और उस साइड में क्या है, उस साइड में क्या है, साइन है, मतलब यहाँ क्या आएगा बीच में माइनस, तो कॉस ए माइनस बी। और आपको मैंने क्या बताया था, याद करो, जब भी दो साइन का प्रोडक्ट हो तो माइनस आता है, तो आप बाहर में यहाँ पे क्या करोगे, माइनस ले लो। अंडरस्टूड हाउ टू रिकॉल द ऑल द फॉर्मूले, इतना सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए विद हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। सो गॉट दिस, कैन आई मूव फॉर द एक्सरसाइज नाउ। और एक टाइप का और फॉर्मूला रह गया अपने पास में, दैट इज नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, उन दोनों को डिवाइड कर दो तो टैन आ जाएगा, तो टैन ऑफ माइनस थीटा इधर कितना हो जाएगा, माइनस टैन थीटा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द लास्ट वन दैट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, लेट्स मूव टू द आवर एक्सरसाइज। जयेश, व्हाट इज पाई बाय 6 इक्वल टू, पता है? यस, नहीं पता है तो नो, पर टेंशन नहीं लेना है बस। गणेश, Yes, sir. पाई बाय 6 इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 30 degree. 30 डिग्री। ओके, बिकॉज़ पाई का वैल्यू कितना, व्हाट इज पाई, पाई कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, तो ये तो याद रखो आप हमेशा पाई इक्वल टू 180 डिग्री, नाउ रेस्ट यू कैन कैलकुलेट। व्हाट इज द पाई बाय 4, कितना होगा पाई बाय 4, 4 मतलब 45, कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। अच्छा व्हाट इज पाई बाय 3, कोई बताओगे पाई बाय 3 यहाँ पे, 60 डिग्री। ओके चलो 60 डिग्री। व्हाट इज पाई बाय 2, 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये जो 4 है ना 1 2 3 5, ये 5 आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए, because you are right now you are not comfortable with the radian measurements, that's why I am saying please try to recall in the degree measurement. ओके, जब वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा फिर आपका कोई तकलीफ, बाद में आपको ये खुद ब खुद रेडियन मेजरमेंट याद हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए, तो अभी मुझे क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई बाय 6, ठीक है। तो आप लोग इनको हमें क्या प्रूफ करना है, माइनस हाफ होता है, हमें ये क्वेश्चन ऐसा कि प्रूफ दैट करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू कितना है, माइनस हाफ। ओके, ये बच्चों वाली क्वेश्चन है, आप लोग हमें इनका प्रूफ बता सकते हैं। तो यदि मैं इनको थोड़ा और क्लियर के लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 हाफ। देखो ये मतलब ये है हमारे जो है ना शुक्ला जी मूर्ख कभी कभी बन जाते हैं, हम साइन स्क्वायर पाई बाय 6 पूछे हैं, यहाँ बता दिए, गलत हो गया है। आप लोग अरे, यहाँ 1/4 ठीक है, 1/4 ओके। देखो साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, आप चाहिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इनको कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है 60, सो 60 डिग्री, ओके। फिर माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 का मतलब 4 मतलब 45 इधर जाएगा 45, अंडरस्टूड। ना व्हाट इज साइन 30, बचपन में पढ़ाया गया था हाफ होता है उसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 फिर से बचपन में जाएंगे याद करेंगे वो हाफ था, हाफ स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 1, सो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 कितना होता है 2/4, तो 2/4 माइनस 1, 2/4 होता है 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 कितना होता है बोलो, माइनस हाफ। तो प्रूफ हो गया, समझ गए आप लोग, जूही यू गॉट दिस, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने Yes, sir. किया होगा, ओके। चलिए अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मीनवाइल आप इनको समझ के लिखना चाहते तो लिख भी लिया, क्योंकि इतना टाइम आप लोग ज्यादा इस पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं।
अब आप लोग बताइए, आपके पास चार क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है? पहला तो मैंने कर दिया, 2, 3, 4 में से कौन सा क्वेश्चन करना है? यू कैन रिप्लाई हियर आल्सो और इन द चैट बॉक्स। आप बताइए, बता भी सकते सर हैं या कोई चैट नहीं। बॉक्स में बोल दीजिए। कोई नहीं, नहीं हम तो कोई करेंगे एक ना एक। जनता का बात तो सुनना पड़ेगा। रुको ना, तुमको आता है, सबको थोड़ा आता है। यस, आप चैट बॉक्स में भी लिखिए, मैं आपका नाम नहीं बोलूंगा, बट आप बताइए मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। नो वन? हेलो सर क्या क्या था? अरे क्वेश्चन 2, 3, 4 में से कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं सॉल्व? यस, सर कोई सा भी कर लो। कोई सा भी कर लो। जो ही बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है? 1, 2, 3, 4। सर थर्ड वाला कर सकते हैं। यस, काम है हमारा थर्ड वन। सो हमें सेम टाइप के प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट बेसिकली। ठीक है, हम तब तक में इनको मिटा देते हैं, हम लोग ध्यान दीजिए। अभी क्या प्रूफ करना है? कि कॉट स्क्वायर ये प्लस कॉट स्क्वायर वो उतना होता है। ठीक है, ये तो देखते हैं कितना। पहले बात, इसको तो प्यार से पहले कन्वर्ट कर लो। देखो ये कॉट स्क्वायर 5/6 अच्छा लगता है हमारा। पाई के टर्म्स में ना इतना ही आंसर आना चाहिए, इतना ही चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। ये देखो, ये बाहर औकात से बाहर चले गया। इसको हमें लाइक उस लेवल में लाना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट दिस बेसिकली। तो वही बता अमितोज, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस? कोसेक है तो 5/6 को कैसे कन्वर्ट करेंगे अमितोज? यस सर। हाउ कैन वी कन्वर्ट द 5/6 इन टर्म्स ऑफ एस? इसमें लाना है, कैसे करेंगे? सर इट विल बी 150 डिग्री। 150 degree. There is no need to write on in degree. First try to convert in this, then write on in degree. I told you that time Malik, you have to modify your numerator with the reference of the denominator. तो denominator का multiples में आपको convert करना पड़ेगा। तो can I write on 6 pi equal to what? 6 pi minus pi pi minus pi by 6. So you got this plus 3 tan square pi by 6. Okay. Now if you solve this, so this is cot square how much? 30 degree plus what is this? The 6 pi by 6 how much? Yes, Kusi. Cosec 6 pi से 6 cancel हो जाएगा, कितना आएगा? pi minus pi by 6. Arohi, are you there? 3 tan square 30 degree. Arohi, are you there? No. Okay. रिया तांबे का cot square 30 कितना होता है? 3. cot square 30 सही है 3. cot 30 होता है √3, उसका स्क्वायर करना है प्लस this angle belongs to which quadrant? pi minus Second quadrant. देखो pi मतलब इधर आ गए हम लोग, pi मतलब इधर आ गए ना। हेलो शुक्ला जी। हाँ सर। कहाँ पे है? pi मतलब यहाँ पे है ना शुक्ला हाँ जी? सर। अच्छा, अब माइनस कर रहे तो राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे? कल बताए थे, याद है? Right side. माइनस का मतलब राइट होता है, और हम हमेशा कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में आप यहाँ पे है और राइट साइड घूमिएगा तो इसमें आ जाइएगा ना। हाँ सर, पाई माइनस ऊपर रहेगा, पाई प्लस नीचे रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिए, पाई प्लस वगैरह जाने दीजिए। माइनस का मतलब राइट रखेंगे, राइट हैंड रखेंगे, जो जहां पे आप बैठे हुए हैं उस पोजीशन पे आपका राइट पोर्शन दिखेगा। ठीक है, तो फिर पता चल जाएगा कि आप किस साइड मूव कर रहे हैं। तो हो गया ये खत्म। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। सो दिस विल बी द कोसेक। इसका काम खत्म हो गया। इसका काम ये पता करने में चला गया कि ये प्लस है। नाउ बचेगा कितना? कोसेक हाउ मच? There is a pi by 6 Pi by plus 3 into what is tan 30 degree? 1/√3.
so whole square. So 3 plus cosec pi by 6 is 2 plus 3 into 1 by 3. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 3 plus 2 plus 1 6. 6. So you got this? Yes? हेलो, सर हो गया. यस सर. चलो ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. sin 75 कैसे सॉल्व किया जाएगा? sin 75 कैसे लिखेंगे? Sin 30 plus 45. या एग्जैक्टली 30 प्लस 45. ये आप लोगों को होमवर्क है, खुद से कर सकते हैं. तो कैसे कैसे इसको सॉल्व? अब ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया. सो अप्लाई द फॉर्मूला फॉर sin a plus b, that is sin 30 degree into cos 45 degree, okay, plus cos 30 degree into sin 45 degree, और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा. अंडरस्टूड? चलो, व्हाट अबाउट tan 15 डिग्री? कैसे सॉल्व करेंगे tan 15 डिग्री को? 60 degree minus 45. Yes, tan 60 degree minus 45 degree. Now you can apply the formula for tan A minus tan B. So this is the homework. This is the homework. आपको घर से खुद करके आने नहीं आया तो फिर हमें पूछना है. बट ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नाउ अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 करने की जरूरत है हमें? बताइए. ये एंगल देखो कितना है? cos pi by 4 minus x, cos pi by 4 minus y, minus sin pi by 4 minus x, sin pi by 4 minus y. अब ये एंगल क्या है? ये एंगल और ये एंगल सेम है या डिफरेंट है? सॉरी, both these angle are the different one or same one? Yes, Different. different. So can we say that this is the cos A, cos B, this is sin A, sin B. So what is the formula for cos A cos B minus sin A sin B? It is equal to cos, बोलो, A plus B. So A is pi by 4 minus x plus B is pi by 4 minus y. Okay, so what is the cos? Pi by 4 plus pi by 4? Pi by 2 minus x minus y is x plus y. Understood? Hello? यस सर. हाँ What सर. is the cos 90 minus theta? It is a sin theta. So sin x plus y. Understood? So this is the answer for question number 6. ठीक है? Done? Yes or no? हाँ हो गया यस सर. सर ये सब होमवर्क है ना? होमवर्क अभी तो मैं कर ही रहा हूँ. अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को ट्राई करना है. और कितने यहाँ पे स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है? ओके, जिसको नहीं आ रहा है बेशरम बनो शुक्ला की तरफ, जो हमारे एक महोदय हैं, और कुछ भी पूछो. ओके, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना. सर हो गया. What is the here we have in left side tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x, and I told you pi by 4 मतलब 45 उधर गया. Understood? 45 degree. Now so here आप लोग इसमें सब चिल्ला के बोलिए. क्या चिल्ला करके बोलना है? कि tan a plus b equal to, what is tan a plus b? It is tan a plus tan b. It is tan b upon 1 minus tan A tan B. ओके, फिर से एक बार जोर से, जय माता दी नहीं, जोर से ये बोलिए पहले. tan a plus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. tan B. Okay, now tell me the formula for tan pi by 4 plus x. So can we say that a is pi by 4 and b is x? So if you apply the formula for the numerator, then I will get tan pi by 4 plus tan a tan b tan x upon 1 minus tan a tan pi by 4 into tan b, that is x. This is the formula for upper one. Numerator, denominator में tan a minus tan b tan A minus B. हाँ. tan pi by 4
minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 into tan x. Okay, tan pi by 4 का कोई वैल्यू बताइए कितना आता है? Sir, it is equal to tan 45 45 degree. degree. And tan 45 is 1. So sir, I can write down this part equal to 1 plus tan x. ऊपर वाले को नीचे में 1 minus, अच्छा ये 1 into tan x तो कितना हो जाएगा? tan x upon 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Now if I solve this, ये ऊपर चले जाएगा तो I'll get here 1 plus tan x whole square upon 1 minus tan x whole square, and this is your right hand side. Yes, sir. Understood? So homework is question number 8. Okay. होमवर्क आपको अभी बता देता हूँ, ये चीज आपको ट्राई कीजिएगा. 9, 10, 11. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं. अच्छा 11 से मैं आगे मैं अभी ट्राई करता हूँ, मैं बताता हूँ. ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुझे बताने पड़ेंगे, जैसे 11 और 11, 12 मैं एक साथ. There is no background noise now. Is there? हाँ सर है. Background noise है? हाँ सर बहुत है, हवा ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे. इतने देर से तुम लोगों को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था क्या? बताना चाहिए. Okay. So question number 11. We have to prove that. This is also prove that. Okay. दोनों के दोनों क्वेश्चन. Prove that cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x equal to this. ठीक है, तो 11 को मैं पहले सॉल्व करता हूँ. गिवन क्या दिया हो? So what is the left hand side for the 11? 11 क्वेश्चन नंबर का लेफ्ट साइड बताइए. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? It is a cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x. Understood this part? Yes, sir. समझना क्या था शुक्ला इसमें? ये तो लेफ्ट साइड दिया हुआ. Okay, Samin, are you there? Yes, sir. Now tell me which formula we have to use here. So cos a plus b minus cos a minus b equals cos a plus 2 cos a cos b. 2 cos a cos b. Okay. Sir, sin a वाला 2 sin Yeah, a sin a exactly. वाला minus था. Sin a sin. Okay, exactly. वही मैं सोच रहा हूँ cos क्यों बोल रहा हूँ. Listen, forget about this. Can we say that this is the angle A or this is the angle B? I mean, whatever you told now, that is also right, but I'm opting the different method. Okay, so you can solve with the help of that basic method. Can we say that this is a different angle? Yes. Yes, sir. Samin? Yes, sir. No. So if it is a minus, then what will be the answer here? Answer यहाँ पे क्या आएगा? It will be here. Different signs. Sign. With the different sign, na. So if we have the cos A minus cos B, it means that the formula will be 2 times. 2 times. Because of the minus, there will be change. Yeah, sign. 2 sign. Sign. Okay. After that, A minus b addition by of these 2. two. No, A plus B by 2. We are multiplying here. So this angle plus this angle means 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x whole divided by 2. Can we? Yes, sir. Okay. Next part. Sign. We are discussing the cos. So same. So if there is the first is sine, so another will be also sine. Sine A minus B. A minus B means B by what? 2. This minus this. So when you minus this, so 3 pi by 4 plus x minus this angle. So minus 3 pi by 4 and minus plus x divided by 2. But we know that when there will be a two type product, means two sign comes together in the product, there should be outside minus.
Yes. Now after that, can we add on minus 2 times of sine? Can I cancel this part and this part? So 2 times, so can we 3 pi by 4 plus 3 pi by 4 is what? 2 into 3 pi by 4 divided by 2 will be 3 pi by 4 into sine. Can I cancel this and this? X plus x, 2x, 2x by 2, 2x by 2 is x. But what is the value of sine 3 pi by 4? How can I write on 3 pi by 4 equal to? So minus 2 sine 3 pi by 4 को कैसे लिखूंगा बोलो? 4 pi minus pi upon 4 into sin x. Yes. Now what is the formula for this? Minus 2 sine. Can I write on this is the pi minus pi by 4 into sin x? What is the pi minus belongs to which quadrant? Pi minus. Second Yes. quadrant. Second quadrant. Second quadrant. In second quadrant, sin is Quadrant. positive. So minus 2 sine pi by 4 into sin x. वो माइनस बाहर का है, प्लस प्लस ही रहा यहाँ पे. Minus 2 into what is sin pi by 4? 1 by root 2 into sin x. Now can I cancel this? Then we'll get here root 2. So minus root 2 sin x. This is the first step, or you can do the first method to solve this. There are other method also. लेकिन वो चीज आपको क्लिक करना चाहिए, तब आपको वो चीज समझ में आएगा. What about the LHS? I'm solving with the different method here. What is the LHS here? Cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x. Okay, now what is this? This is the a plus b. This is the a minus b. Yes, Riya. समझो, ये cos a plus b है और ये cos क्या है? a minus b है. A minus What is cos a plus b minus cos a minus b? क्या होता है? किसका फॉर्मूला ये होता है? जब यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है तो किसका फॉर्मूला होगा बताओ? cos में क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos A sin B. 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है विद द माइनस. इसी का फॉर्मूला आप ऐसे लिखते हो ना, cos a plus b minus cos a minus b. इसी का फॉर्मूला है. सो इफ यू लुक एट दिस पार्ट, यदि आपको ये पार्ट समझ में आएगा तो लिखना, नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? cos a plus b का फॉर्मूला पता है, cos a minus b का फॉर्मूला हमें पता है, विल यूज दैट वन. ओके, तो आप उस तरह से कर सकते हो, यानी तो यहां से देख कीजिएगा तो यहां से डायरेक्ट बन जाएगा minus 2 times of sin 3 pi by 4 into sin how much? x. And if I solve this, minus 2 into 3 pi by 4 का वैल्यू होता है 1 by root 2 into sin x. Cancel here, we'll get minus root 2 sin x. So this is also the right method and this is also the right method. But कौन सा आपको दिमाग में जल्दी आएगा, किसमें आपको फॉर्मूला क्लिक करेगा? तो आई थिंक दैट कि आपको इसमें फॉर्मूला क्लिक करेगा. इसमें थोड़ा फॉर्मूला क्लिक करने में इश्यू जाएगा. अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस. हेलो. यस सर. हाँ. चलिए, तो फिर आप इनको एक बार लिख लीजिए. So what we have here, the proof that sin squared 6x minus sin square 4x equal to sin 2x into sin 10x. Okay, this we have to prove. तो कोई इनिशियल मेथड बताएगा? पहले LHS तो लिख लो. What is LHS here? LHS is sin square 6x minus sin square 4x. Tell me the initial method. So वो 2 multiply वाला. No. इसमें Tell me the next step. sin b. अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या? Next step. सर sin 6x plus sin 4x और फिर sin 6x minus sin 4x. Exactly. We have the formula in terms of the linear. We don't have the formula in terms of quadratic. Okay, the first we have to convert into linear. Linear मतलब a square minus b square है. What is a square minus b square? It is a plus b into a minus b. मतलब sin 6x minus sin 4x. A minus b into a plus b means sin 6x plus sin 4x. Understood this part? हाँ सर. Okay. अब बस फॉर्मूला यूज Riya. करना होगा. हाँ, Riya, are you there? Tell me the Yes, sir. formula here. Formula बताओ. क्या आएगा? माइनस है तो 2 आएगा, इतना तो पक्का है. माइनस है तो हाँ, साइन sir. का कॉस हो जाएगा, इतना पक्का है. ठीक है. मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई A होगा तो दोनों plus का B एंगल by एडिशन 2. दो. तो 6x plus 4x by 2. अच्छा, दूसरा बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? साइन लेंगे या कॉस लेंगे?
Sine. साइन लेंगे क्योंकि साइन को डिस्कस करें अपोजिट आना चाहिए. सो द साइन एंगल विल बी 6x minus 4x by 2. ये तो हुआ पहले का. टेल मी द फॉर्मूला फॉर दिस. यस रिया फास्ट. 2 sine 6x plus 2 4x by sin 2. एग्जैक्टली द प्लस है तो 2 आएगा. उसके बाद क्या होगा साइन है तो प्लस की वजह से सेम आएगा तो साइन 6x plus 4x by 2. 6x plus 4x by 2. ओके नेक्स्ट. Cos और 6x साइन की वजह से minus डिफरेंट आएगा cos 6x 6x minus. minus 4x by 2. Okay. So can I write this is equal to what? 2 cos 4x plus 6x plus 4x 5x. 10x by 2 5x. Okay. Into sine how much? 2x by X. 2 x into X. 2 sine 5x into बोलो cos x. Cos अब x. सेम एंगल वाले को साथ ले लो. सेम एंगल वाले को साथ ले लो. तो कैन आई राइट दिस इज 2 sin 5x सब मल्टीप्लाई में into cos 5x into बताइए ये किसको लिख सकते हैं 2 sin x into cos x. इसके बराबर कितना होगा? व्हाट इज दिस इक्वल टू? याद करो 2 sin डब्बा बाय 2 into cos डब्बा बाय 2 कितना होता था? Sin 10x. साइन डब्बा मतलब यदि आपको जो एंगल यहाँ दिख रहा है वो एंगल वही सेम एंगल यहाँ दिख रहा है और 2 भी बाहर में है तो 2 sin डब्बा बाय 2 into cos डब्बा बाय 2 इक्वल टू sin डब्बा. इट मींस व्हाट डबल हो जाता है उसका. तो यदि इनको मैं सॉल्व करूंगा तो ये डब्बा बाय 2 है ये डब्बा बाय 2 तो डब्बा कितना होगा? Sin 10x. 10x हो जाएगा ना. तो साइन विल बी द 2 into डब्बा बाय 2 2 into कितना हो जाएगा 5x. समझा? नहीं तो डब्बा बाय 2 into 2 कर लो इसको सेम चीज समझने के लिए. तो साइन में हमेशा रखना है 2 sin थीटा into cos थीटा. 2 sin थीटा into cos थीटा किसके बराबर होता है? इट इज sin 2 थीटा. ऑलवेज रिमेंबर. तो 2 sin थीटा into cos थीटा इज sin 2 थीटा. तो sin 2 थीटा means 10x into again 2 sin theta into cos theta equal to sin 2 theta means sin 2x. If you look at this is your RHS. Understood? This is your Yes, sir. sin 2x into sin 10x. So sin 10x into sin 2x. So this is your RHS.